Hi, welcome to the last chapter of the book How Finance Works by Mihir Desai. The name of this chapter is Capital Allocation, and in this chapter, we are going to learn four major concepts, all of which circumvents around the concept of how a company decides to allocate its capital. Okay, so here let's get started. So as you can see here that Apple, the chapter starts by saying that Apple shareholders were getting angry against the then CEO Tim Cook because they were holding a large amount of cash with them. Okay, and due to which the shareholders were worrying increasingly. At the same time, Google decided to, you know, disburse its cash. It decided to uh, change its shareholding structure to ensure that it would never face such a challenge. ओके उसने क्या किया कि वोटिंग राइट्स बढ़ा दिए शेयर होल्डर्स का सो दैट शेयर होल्डर्स आर नॉट वरीड अननेसेसरीली सो ये दो केसेस से हमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों है कि कोई कंपनी जब अपने पास ज्यादा कैश रखती है या फिर अपने कैपिटल को कैसे एलोकेट करना है इस ये डिसीजन पार्टिकुलरली शेयर होल्डर्स को क्यों बॉदर करता है. Okay, so this question we are going to address in this chapter. Okay, so here is a you can see a diagram, and this diagram is the backbone of this chapter. इस डायग्राम में बताया गया है कि कैसे कोई कंपनी अपने कैपिटल को हैंडल करती है. Okay, first of all, free cash flow, which is basically the projects. Okay, sorry, so the projected cash inflows discounted at a particular rate, appropriate rate. अब हमारे पास लेट से कैश है कुछ 100 रुपए कैश है. अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कोई लेट से प्रोजेक्ट ढूंढे जो हमें पॉजिटिव एनपीवी दे. राइट, एनपीवी इफ यू रिमेम्बर इट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. राइट, if net present value of a project is positive, then it is meaningful to invest on them because it will create value. It will generate value for us. Ab, if the answer is yes, then retain your money and invest it in either organic expansion. Let's say मैं कोई पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया जो मेरे को आगे जाके एक्सपेंशन देने वाला है, या फिर आई कैन गो फॉर इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन विच इज बेसिकली मर्जर एंड एक्विजिशन. इफ द आंसर इज नो, दैट मेरे पास कोई पॉजिटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है, सो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकुलर money that we have with us either through dividends or share buybacks. Okay, so this is mota mota the entire summary of this chapter, but still we will go into the details of each of these terms. So let's read. The capital allocation problem is best understood as a nested series of decisions as seen in figure 6.1. First question measures. Okay. Positive okay. Yeah. तो इस पूरे पार्ट में इसी चीज को समझाया है. ओके, जो मैंने अभी समझाया आपको. ओके, सो नाउ एज आई सेड वी आर गोइंग टू गो थ्रू ईच ऑफ द टर्म. फर्स्ट इज रिटेनिंग कैश. If you are in a position to make investment, there are some basic criteria to use that decision. First, you need to calculate the net present value in order to identify the organic or inorganic. रिटेनिंग कैश एक मेथड जैसा कि मैंने बताया कि आप इफ द आंसर इज यस टू दिस क्वेश्चन कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट या फिर कोई पॉजिटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट मेरे पास है या नहीं,
सो इफ अगर है मेरे पास, देन वी शुड, a company should retain its cash and invest in that particular in project, right? अब the perils of inorganic growth, okay. अब perils मतलब होता है disadvantages, inorganic growth मतलब basically growth acquired through merger and acquisition. अब मर्जर एंड एक्विजिशन काफी सीईओस को ल्योर करता है, ओके, ललचाता है, एज अपोज टू ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट। बिकॉज क्यों ऐसा होता है? क्योंकि काफी फैक्टर्स आती है उसमें से। लेट्स से फॉर एग्जांपल सिनर्जी बोल के एक कंसेप्ट है। मैंने सीईओ को लगता है या फिर मैनेजर्स को लगता है कि कोई पार्टिकुलर कंपनी एक्वायर करने के बाद जो है, अम, हम हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी और वो कंपनी बहुत अच्छी तरीके से सिनर्जाइज करके काम करना स्टार्ट कर देगी। बट द प्रॉब्लम इज दैट दे ऑफन इग्नोर हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी टू गेट दिस कंपनी गेट दिस टू separate companies to work together, right? Before the merger, ये basically it is one of the perils of inorganic growth. So before the merger, when you buy pre-existing asset, the seller has much more information about the asset than buyer, and the buyer can only make educated guesses. Okay, so that's why due diligence is such an important part of the merger. But in the end, they have to remember that seller will have the advantage. What makes sellers to approaching the merging they might if there is revenue will delay further, they might worry progressive back of customers who want to save you. Okay. तो एक प्रॉब्लम जो कि एक पेडल है इनऑर्गेनिक ग्रोथ का, विच इज बेसिकली नथिंग बट मर्जर एंड एक्विजिशन, इज बिफोर द मर्जर। अब क्या होता है कि दो पार्टीज होती है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि सेलर्स के पास काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ओके, इंफॉर्मेशन का भंडार है अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो कि बायर्स के पास नहीं है, लैक। अब बायर सर्टेन टूल्स का इस्तेमाल करके, लेट्स से अपने अपना कोई टीम वो सेटअप करती है, जिसका काम है सेलर के इन इंफॉर्मेशंस को ढूंढ ढूंढ के निकालना। या फिर वो किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को अप्रोच करती है सो दैट दे कैन गिव अ क्लियर पिक्चर ऑन द पोजीशन ऑफ द सेलर, ओके। बट स्टिल दिस गैप ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट टू अवॉइड। एक इंफॉर्मेशन गैप का एग्जांपल यहाँ पे दिया है। लेट्स से सेलर्स कुछ आउटस्टैंडिंग कस्टमर्स को, ओके, कुछ आउटस्टैंडिंग कस्टमर्स या फिर डेटर्स जो कि बैड डेप्ट बन गए हैं, उनको बुक में शो नहीं किया, ओके, बुक में शो नहीं किया, और उनको बायर्स को चेप दिया कि यार ये आउटस्टैंडिंग डेटर्स है, इनसे रियलाइज कर लो आप कैश। तो दिस इज वन प्रॉब्लम। अब बायर को थोड़ी पता है कि कौन सा कस्टमर कैसा है, या फिर कौन सा ट्रांजैक्शन हमारे बैड डेप्ट के खाते में है। So these are some of the information blockages that the CEOs have to face while undergoing the merger and acquisition process. Now, after the merger, although the rationale of synergies can be tantalizing, अच्छा, हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि सिनर्जी का कंसेप्ट आफ्टर द मर्जर का प्रॉब्लम ये होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि कोई कंपनी को, छोटी मोटी कंपनी को खरीद लेता है और ये एज्यूम करके चलता है कि ये हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी इस कंपनी के साथ काफी अच्छी तरीके से जुड़ जाएगी और हम जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। बट ऐसा ऑफन नहीं होता है, क्योंकि कई सारे, मतलब ऑन द फील्ड या फिर ग्राउंड रियलिटी में ऑफन देखा जाता है कि कई सारे फैक्टर्स ऐसा करने से उनको रोकती है, राइट? सो दैट इज व्हाई द
process is delayed and oftentimes it is not at all realized कि ऐसा ऐसा भी देखा जाता है कि दो कंपनी एक साथ काम ही नहीं कर पा रही है अलाइन करके अपने प्रोसेसेस को अलाइन नहीं कर पा रही है राइट सो दिस इज अनदर मेजर प्रॉब्लम दैट मर्जर एंड एक्विजिशन हैव उसके बाद हम आते हैं कॉन्ग्लोमरेट पे aggressive merger and acquisition strategies can also lead to conglomerates or multinational companies with vertical okay. Solution altogether, the government and अब एग्रेसिव मर्जर एंड एक्विजिशन करते वक्त क्या होता है कि अम, कोई कंपनी अक्सर कॉन्ग्लोमरेट बन जाती है अब कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है कॉन्ग्लोमरेट इज जस्ट अनदर फैंसी नेम फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज एक ऐसी कंपनी जिसका हेड मल्टीपल नेशंस में है या फिर मल्टीपल जगहों में है ओके तो इसका कई सारे नुकसान है मल्टीनेशनल या फिर किसी कंपनी को कॉन्ग्लोमरेट बना देना पहला तो है कि आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रुक जाता है राइट एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत दिक्कत आती है कॉन्ग्लोमरेट्स को दूसरा है कैपिटल एलोकेशन अच्छा लिख लेता हूँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा है कैपिटल एलोकेशन लेट्स से हमारे पास दो क्वार्टर्स है दो हेडक्वार्टर्स है एक है दुबई में एक है इंडिया में अब हमें पता है कि यार इंडिया का जो कंपनी है वो अच्छा खासा हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है और प्रॉफिटेबल चल रहा है लेकिन हो सकता है कि दुबई वाला ब्रांच उतना प्रॉफिटेबल ना हो या फिर बिल्कुल प्रॉफिटेबल ना हो बट इन दैट केस we being a conglomerate they cannot just ignore this Dubai branch they have to allocate equal capital जितना इंडिया में लगाया है उतना ही दुबई में भी लगाना बनता है फॉर द सेक ऑफ देयर शेयर होल्डर्स राइट सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम दैट conglomerates फेस अब लोग बहुत सारे जस्टिफिकेशंस देते हैं कॉन्ग्लोमरेट बनाने का पहला है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाता है ओके cost of capital might get reduced due to making diversifying its headquarters दूसरा जस्टिफिकेशन जो देते हैं लोग इन फॉर कॉन्ग्लोमरेट्स वो ये है कि रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाता है रिस्क डाइवर्सिफाई ओके बट ये दोनों रैशनल जो है वो गलत है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लॉजिक जो है गलत है क्योंकि सी यहाँ पे लिखा हुआ है कि द थिंकिंग गोज लाइक दिस बाय डूइंग डाइवर्सिफाइंग एक्विजिशन आई विल ब्रिंग माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू दैट टारगेट फॉर एग्जांपल we have a 10% discount rate or cost of capital and look at that target company with a cost of capital of 15%. Well, if I can buy that company and put in inside my company, it will get revalued higher because of my 10% cost of capital and that can be powerful value creating. कहता है कि लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या लॉजिक है कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है किसी और कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है इसको मैं एक्वायर कर लूंगा तो हम दोनों का मिला के 10% हो जाएगा राइट तो बट ये रैशनल गलत है ये रैशनल गलत है क्योंकि दिस रीजनिंग इज फ्लॉड एज द करेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू यूज इज अ फंक्शन ऑफ द बिजनेस यू कैंट एक्सपोर्ट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओके ये लाइन इंपॉर्टेंट है यू कैन नॉट एक्सपोर्ट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अरे यार तो हम अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हम दोनों का एंटिटी मिला के उसके बाद नया जो है
एनालिसिस किया जाएगा कि अब क्या नया नए नए एंटिटी के लिए क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है। ओके। और दूसरा जो है दैट इज कि जैसा कि मैंने बताया रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। अब ये लॉजिक बेकार है क्योंकि this line of inquiry though is faulty and ignores the fact that managers are undertaking diversification while shareholders could arguably achieve that risk management themselves. The logic of finance is that you shouldn't do something for shareholders that they can do for themselves. अब रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करने का मतलब ये है कि लेट्स से शेयर होल्डर्स का पैसा, बेसिकली कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे से चलती है मैक्सिमम। और अगर आप ये लॉजिक लगा रहे हो कि रिस्क शेयर होल्डर्स के पैसों का रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। लेट्स से मेरा दो प्रोजेक्ट है कंपनी का। मैं लेट्स से ओके कॉन्ग्लोमरेट्स की बात करें, सो लेट्स से मैं जैसा कि मैंने बताया दुबई हेड है और इंडिया हेड है। दुबई हेड में सॉरी इंडिया हेड में हम प्रॉफिट बना रहे हैं, दुबई हेड में हम लोग लॉस बना रहे हैं। तो दोनों पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो एक प्रॉफिट में जनरेट करेगा आपके लिए, एक लॉस जनरेट करेगा, सो ओवरऑल रिस्क जो है बैलेंस हो जाएगा। बट ये लॉजिक बेकार है क्योंकि ये तो शेयर होल्डर्स खुद भी कर सकता है। वो मार्केट को एनालाइज करके, इंडस्ट्री को एनालाइज करके वो उन्हीं कंपनीज पे पैसा डाल सकता है जो प्रॉफिटेबल रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं, राइट। सो दैट इज द केस कि जो काम शेयर होल्डर्स खुद अपने लिए कर सकते हैं वो उनके लिए नहीं करके देना है, राइट। अब मुद्दा आता है डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश टू शेयर होल्डर्स। ओके, तो जस्ट इफ यू रिमेम्बर द प्रीवियस फिगर करेक्टली, यहाँ पे हमने रिटेन के केस में बहुत ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के फायदे और नुकसान देख लिए। अब हम आते हैं नो वाले क्वेश्चन में। नो वाले क्वेश्चन में अगर हमारे पास एनपी कोई पॉजिटिव एनपीवी वैल्यू प्रोजेक्ट नहीं है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पैसे को। अब डिस्ट्रीब्यूट हम डिविडेंड के फॉर्म में कर सकते हैं। डिविडेंड में भी कैटेगरीज होते हैं लाइक वन टाइम डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड या फिर शेयर बाईबैक हो सकता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। Assuming a company doesn't have worthwhile projects to pursue, it should distribute cash shareholders. If a firm decides to distribute cash, how should it do so? There are two primary options, dividend and stock buybacks. The more intuitive way to distribute cash is to pay a dividend. A company simply pays cash to its shareholders on a pro rata basis. Dividends can be part of a predictable flow or they can be larger one-off events, so-called special dividends. The second method is तो यहाँ पे बोला है कि दो दो तरीके होते हैं, one time dividend or special dividend. The second method of cash distribution, a share buyback, is less intuitive. The company buys back its own shares in the open market and then retires them. As a consequence, investors choose not to sell their shares who will own a slightly large fraction of the company and cash has been distributed. Share buybacks have become tremendously popular. So दूसरा जो काम कर कंपनी कर सकती है कि अपने शेयर्स को मार्केट से खरीद सकती है। ओके। और इसके वजह से क्या होता है, वो इन्वेस्टर्स जो अपने शेयर्स होल्ड करके रखना चाहते हैं उनका शेयर जो है बड़ा हो जाता है। ओके, क्योंकि देर आर लेस शेयर्स इन द मार्केट एंड द एग्जिस्टिंग शेयर्स गेट प्राइस्ड अप, okay, due to demand supply mechanism. So which is the better method of distributing cash, dividends or share buyback? There is no right answer to this question, but it is useful to begin by debunking some of the misconceptions so you can develop some better intuition on this decision. For example, somebody might argue, okay. So यहाँ पे बोला है कि कोई कंपनी अपने जो शेयर्स है वो बाई बैक कर लेती है या फिर उसके अगेंस्ट डिविडेंड पे करना चाहती है। ये डिसीजन शेयर होल्डर्स के लिए मैटर नहीं करना चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका जो
टोटल गेन है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो हियर इज एन एग्जांपल दैट इलस्ट्रेट्स द सेम। 6.3 में देखिए, यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, प्रिपेयरिंग फॉर कैश डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी के पास एसेट साइड में कैश है $100, ऑपरेटिंग एसेट है $100, और लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी में डेप्ट है इसके पास $60, इक्विटी है $140, जो कि 100 शेयर्स एट 1.4 पर शेयर है। ओके, अब देखते क्या बोलता है। The company in the figure has a large amount of cash and is considering distributing some via dividend or buyback. Because this balance sheet is market based, the equity values can easily be translated to share price and the value of operating assets are market value. If the company distributes $70 of that cash as dividend to shareholders, what will happen to the market value balance sheet? Given that there are 100 shares outstanding, there is 0.7 per share dividend. अब जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे कि $140 इक्विटी है टोटल, और 100 शेयर है एट द रेट 1.4 पर डॉलर। अब कंपनी अगर डिविडेंड पे करना चाहती है तो उसका वैल्यू जो आएगा दैट इज $0.7 पर शेयर डिविडेंड। द कंपनीज कैश होल्डिंग फ्रॉम $70 ड्रॉप $70 फ्रॉम $100 टू $30। ओके, तो $70 जो डिविडेंड के फॉर्म में पे करेगी, वो $70 से वो जो मतलब अमाउंट पे करेगी वो कैश रिड्यूस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जो कैश है $100, वो $70 पे करने से 30 हो जाएगा, और उससे क्या होगा, बट द वैल्यू ऑफ द ऑपरेटिंग एसेट रिमेन सेम। हाँ, ऑपरेटिंग एसेट सेम रह जाएगा, बिकॉज डेप्ट रिमेन सेम, डेप्ट सेम रहेगा। द इक्विटी वैल्यू ऑल्सो हैज टू ड्रॉप $70 फॉर द बैलेंस शीट टू बैलेंस। अब ये इक्विटी को $70 में आना पड़ेगा ताकि ओवरऑल बैलेंस शीट बैलेंस हो जाए। अब कैसे इक्विटी $70 पे आएगी? द प्राइस पर शेयर वुड फॉल फ्रॉम $1.4 per share to 0.7 per share. As a shareholder, you might seem to be taking a hit, but when you factor the 0.7 cash you receive, you are left with $1.4. ओके, सो आपको समझ में आया होगा कि ये कैश जो एक्सेस है, ये अगर $100 पे करती है, $100 में से लेट से $70 ये डिविडेंड के फॉर्म में पे करती है शेयर होल्डर्स को, तो इन दैट केस इक्विटी अपने आप ही बैलेंस होके जो है एसेट और लाइबिलिटी साइड, दिस साइड इट इन दिस साइड इट विल रिमेन फ्रॉम $100 इट विल बिकम 30, तो ओवरऑल इट विल बी 130, और यहाँ पे 60-60 रहेगा, और 140 जो है ये चेंज हो जाएगा, है ना। सो दैट द टोटल इज 130, और ये कितना हो जाएगा, 130 माइनस 60 करिए, 70 हो जाएगा, 70। ओके, और ये 70 सेम 70 है जो यहाँ से हमने पे किया, राइट। सो दिस इज व्हाई इट दिस इज एन एग्जांपल व्हाई इट शुडंट मैटर if the company is deciding to pay us in the form of dividend or buying back our share. Okay, so this is what they explained in this entire part. Now we will come to this, the decision to distribute cash. The value neutrality of keeping or distributing cash is true under idealized condition, the so-called Modigliani and Miller condition of no taxes, perfect information, and no transaction cost. Under these conditions, there are no value consequences to the mechanics of dividend or buybacks. Real world consideration have an impact. Okay.
सी ऑन पेपर या फिर ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि यार ये डिसीजन मैटर नहीं करना चाहिए वेदर अ कंपनी डिसाइड्स टू डिस्ट्रीब्यूट द cash in the form of dividends or it tries to buy back the shares. But एक्चुअल कंडीशन में ये मैकेनिज्म अलग तरीके से काम करता है. ओके, एवरीथिंग इज नॉट एवरी नॉट एवरीथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू द बुक्स. ओके, या फिर द थियोरेटिकल कंसेप्ट. क्या होता है कि पहला तो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि टैक्स कंसिक्वेंसेस आ जाता है. अब टैक्स कंसिक्वेंसेस का क्या मतलब है कि इन्वेस्टर्स को जब लेट्स से डिविडेंड मिलता है तब दैट इज अ गेन which is taxed heavily, but on the other hand, let's say their shares are brought back. In that case they have to face a tedious, sorry, not in the former case जब उनको डिविडेंड मिलता है, in that case it is a capital gain and they have it is taxed tediously. But in case of the latter, which is उनका शेयर बाय बैक कर लिया जाता है, in that case the tax system is थोड़ा लूज है, राइट, उतना चार्ज नहीं करता है टैक्स. सो दिस इज वन रीजन shareholders get worried when the company decides to, you know, issue dividend or buy back its shares, as we discussed in the initially in the Apple versus Google case. दूसरा प्रॉब्लम है कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. अब एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से क्या होता है कि जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, राइट, कि कैपिटल मार्केट्स में देयर इज अ लॉट ऑफ क्लाउड्स इन बिटवीन द बाइंग पार्टी एंड द सेलिंग पार्टी. सो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से ये दिक्कत होती है कि जब भी कि कोई कंपनी शेयर को बाई बैक करना चाहती है तो शेयर होल्डर्स को लगता है कि दैट कंपनी इज अंडर प्राइस्ड एंड इट्स शेयर प्राइसेस विल shoot up in the near future. So in that case, they become reluctant to sell their shares. And moreover, there was a problem that we discussed in the last chapter between the winning curse. Okay, winning curse कहती है कि जब कोई कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से खरीदती है तो दे हैव द बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल. इसलिए कोई उनके बिडिंग प्राइसेस के ऊपर बिड नहीं करना चाहता है. ओके, so this is another major problem. So we discussed two problems till now to, regarding this decision to distribute cash. Decision of distributing cash. Problems. पहला प्रॉब्लम है टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस. दूसरा प्रॉब्लम है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. ओके, और तीसरा प्रॉब्लम है दैट इज कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. अब बाई बैक करने से क्या होता है कि सॉरी, नॉट बाय बैक, एक्चुअली बहुत सारा पैसा जब कंपनी के पास आ जाता है, ओके, सो इट कैन enable the CEOs to acquire unnecessary companies by ignoring the abilities to synergize और other problems को इग्नोर कर देती है, राइट. और क्यों क्यों ऐसा करती है सीईओ कि कोई एग्रेसिवली कोई एक्विजिशन कर देती है? इसलिए करती है क्योंकि उनको, सीईओ को अपना जो है पोजीशन enhances their position in the CEO labor market. Okay, but it actually destroys value. Okay, so उनको in simple words उनको अपना वैल्यू जो है they want to be responsible for managing a bigger company. Just simple fact. वो अपने पोर्टफोलियो जो है, नॉट पोर्टफोलियो एक्चुअली, वो अपना ओनरशिप जो है क्लेम करना चाहती है एक बड़े एंटिटी पे. But this is a very foolish reason to, you know,
spend so much money of the investors' money. So these are the three problems of distributing cash. अब क्या बोलते हैं कि agency condition can interpretation of price, interpretation by share buyback. Okay. जैसा मैंने बताया ये वही adopting an agency perspective can help explain this phenomena. Share buybacks can also be used to achieve various operating metrics. Let's say manager is a penny short on earning per share for a given quarter and knows that he will be punished by the market for the error, possibly making him miss out on a bonus. How can he manufacture a penny of EPS? A share buyback reduces number of shares outstanding and increases EPS, but that short-term illusion of higher EPS is not likely to best interest of shareholders. दूसरा रीजन होता है बायबैक करने का कि लेट्स से यहाँ पे जैसे बताया कि अर्निंग पर शेयर में को बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए ओके इन्वेस्टर्स को इन अर्निंग पर शेयर इज व्हाट इट इज बेसिकली अ मेट्रिक फॉर इन्वेस्टर्स टू असेस अ कंपनी और सो टू टारगेट मोर इन्वेस्टमेंट्स इन द फ्यूचर उनको अर्निंग पर शेयर बढ़ाना होता है मैनेजर्स को और अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए भी कभी कभी मर्जर एंड एक्विजिशन सॉरी नॉट मर्जर शेयर बाईबैक कर लेते हैं और वो क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म में ईपीएस को बढ़ा देती है बट इन द लॉन्ग रन इट इज द सेम अर्निंग पर शेयर में कोई फर्क नहीं आता है. So now that we have studied this much, now we are going to study some of the myths and realities in financing decisions. Okay, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी इशुएंस, स्टॉक स्प्लिट्स, leveraged recapitalization, venture financing. Okay, so these and also many more things we are going to study. So among the myths and realities in financing decisions, first is equity issuance. Equity issuance मतलब basically equity को issue करना और equity issue करने में क्या दिक्कत आती है ये इस में एक एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है राइट. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे if the company decides to issue $70 more in equity, okay, what will happen to the market-based balance sheet and the stock price? After the company issues $70 in equity, it will have 70 more in cash for a total of $170. Its operating asset and debt levels are unchanged, so the market value of the company is now $210. How much are the shares worth? To think this through, we need to know how many shares are outstanding after the issuance. Shares are selling at 1.4 each, so raising $70 would require the company to issue 50 shares. That leaves 150 shares outstanding to split that 210 in equity. Shares must therefore be selling for 1.4 per share, just as before. Issuing equity has not diminished the price of the company's stock. It is exactly the same. In general, this is a manifestation of the lesson that value creation comes from the asset side of the balance sheet, not from financing. What about dilution? Shareholders may now have a smaller percentage share, but it is of a larger price. Even so, when companies issue stock, their stock price often does decline. Why does this happen? Okay, so बेसिकली इक्विटी रेज करने से क्या होता है कि हमारा अब देखिए यहाँ पे इक्विटी 140 है, यहाँ पे कैश 100 है और यहाँ पे बाकी फिगर्स आप देख सकते हैं. यहाँ पे हमने क्या किया कि इक्विटी हमने रेज किया फर्दर. कितना रेज किया? $70 से रेज किया. उसका वजह से कैश बढ़ गया, ऑपरेटिंग एसेट जैसा का जैसा रहा, डेप्ट सेम रहा, इक्विटी बढ़ गया राइट. तो इससे क्या होता है अल्टीमेटली? कुछ नहीं होता है इन सिंपल टर्म्स. ओके, शेयर होल्डर्स के पास जितने पैसे थे प्राइसेस उतने ही पैसे रहते हैं. कंपनी का जो डेप्ट और एसेट और लायबिलिटी साइड इक्वेट करने के लिए रिक्वायर्ड चेंजेस आते हैं लेकिन उससे शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता. बट दिस activity in itself, ki, going to the market and raising money from equity,
itself creates a fear among the investors, ठीक है। और उसका वजह से क्या होता है कि वो लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस कम हो जाता है। सो दैट इज द वन ऑफ द व्हाट यू कॉल एम्बिग्विटी ऑफ रेजिंग इक्विटी, कि इक्विटी जब आप रेज करते हो तो शेयर प्राइस डाउन हो जाता है, जो विच इज मतलब ये चीज रैशनल नहीं है, राइट, ये होना नहीं चाहिए, बट स्टिल ये होता है बिकॉज ऑफ इरेशनल एक्टिविटीज ऑफ शेयर होल्डर्स। देन हम लोग आते हैं स्टॉक स्प्लिट्स पे। स्टॉक स्प्लिट्स मतलब क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक शेयर है किसी कंपनी का 100 रुपीज का। कंपनी डिसाइड करती है कि 100 रुपीज के एक एक शेयर को दो शेयर में डिवाइड करना, दैट इज 50 and 50। अब इसको करने के फायदे ये होते हैं कि जो चिंदी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो छोटे अमाउंट में डील करना चाहते हैं, वो परचेस कर सकते हैं स्टॉक्स को, राइट। लेकिन ये करना ना करना मतलब एज सच कोई फायदा या नुकसान नहीं है, बट यहाँ पे बोला है कि वॉरेन बफेट का एग्जांपल दिया। सो वॉरेन बफेट की कंपनी है हैथवे, और वो प्रेफर करते हैं कि स्टॉक स्प्लिट ना किया जाए जितना हो सके, राइट। बिकॉज उनको लगता है कि ये स्टॉक स्प्लिट करने से शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट वाले जो लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे कंपनी के फेथफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट पे थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि अगेन स्टॉक स्प्लिट करने से भी इन्वेस्टर्स के अंदर शेयर मतलब थोड़ा सा डर जागता है, और उसकी वजह से शेयर का प्राइस जो है वो फर्दर थोड़ा सा फॉल कर जाता है। ओके, देन वी कम टू लिवरेज्ड कैपिटल रिकैपिटलाइजेशन। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये क्या, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप रिकैपिटलाइज करते हो लेकिन लिवरेज के साथ। मतलब हमने पढ़ा हुआ है हमने जितना भी कंसेप्ट अभी तक पढ़ा हुआ है, उनमें से कुछ का कॉम्बिनेशन है ये। A leveraged recapitalization sounds like a complicated and scary transaction, but it's just a combination of transactions we've already seen. In effect, it is a large dividend funded by the issuance of debt. Imagine that the private equity fund that owns a company wants to do leverage recapitalization. The company will borrow an additional $60 combined with 40 or service cash to pay out for the special $100 cash. Given shareholder, what will happen? The market based balance. अच्छा, इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है डेप्ट लेती है, उधार लेती है, किस लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के लिए। ओके, सो नेट नेट इफेक्ट कुछ नहीं होता है, वो डेब्ट बढ़ जाता है और कैश थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन कैश फिर से डाउन हो जाता है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये अच्छा कंपैरिजन दिया है, ठीक है। पहले डेब्ट था 60, हमने एडिशनल 60 रुपीज डेब्ट लिया, ठीक है, और उसको अम, हमने इक्विटी डिविडेंड के रूप में बांट दिया। सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट डेब्ट विल इंक्रीज बाय $60 एंड कैश विल इंक्रीज बाय 60 to 160। देन cash will decrease by 100 because it is used to pay a dividend, adding up to market value of the operating asset and remaining cash and subtracting debt. We are left with $40 of equity value. What does this mean for the shareholders? 100 shares are now worth $0.4 per share, 40 divided by 100. But shareholders have also received a dividend of $100 split up across those shares of $1 each. 100 divided by 1. That adds up to same 1.4 per share the fund had before. तो यही मुद्दे की बात है, मतलब कुछ उन शेयर होल्डर्स के पोर्टफोलियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डेप्ट बढ़ जाता है, राइट। और इसका भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या एग्जैक्टली है हमें पता नहीं है। The mechanics of this transaction don't necessarily yield value consequences, but there can be value consequences because of other factors.
Specifically, the equity is now substantially riskier, and that should be associated with higher expected returns. ठीक है. सो इसके वजह से क्या होता है कि वैल्यू consequences इसका सच कुछ नहीं है इस प्रोसेस का, लिवरेज्ड कैरी कैपिटलाइजेशन का. लेकिन जो है इक्विटी उस कंपनी के लिए रेज करना फर्दर काफी रिस्की हो जाता है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यू नो इशूइंग. दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इशूइंग डिविडेंड्स. तो एक बार डिविडेंड देना स्टार्ट कर दिया तो यू हैव टू कीप डूइंग इट. अब आता है हमारा भैया वेंचर फाइनेंसिंग. वेंचर फाइनेंसिंग अभी के जमाने में बहुत पॉपुलर है. वेंचर फाइनेंसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे दो टर्म होते हैं, वीसी, एंजल इन्वेस्टर्स. ओके. तो वीसी और एंजल इन्वेस्टर्स लगभग सेम है. दीज आर बोथ एंटिटीज दैट प्रोवाइड कैपिटल टू न्यू बिजनेसेस, राइट. वेंचर कैपिटलिस्ट, फर्क सिर्फ इतना है कि वेंचर कैपिटलिस्ट एंटिटी होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है. ओके. अब यहाँ पे वेंचर फाइनेंसिंग में बोला है कि सपोज अच्छा, और ये जो फंडिंग देते हैं नए बिजनेसेस को, वो सीरीज में देते हैं, लाइक सीरीज ए, सीरीज बी एंड ऑन सो ऑन. सो लेट्स से इनिशियली एक किसी कंपनी के पास लेट्स से कुछ नहीं है, सिर्फ उसके पास एक आइडिया है, और वही आइडिया और कुछ पैसे हैं जो इन्वेस्टर, जो सीईओ का खुद अपना ही है, राइट. अब कोई मतलब एज सच फिक्स्ड वैल्यूएशन नहीं है. वो कोई वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाता है और वेंचर कैपिटलिस्ट उसको पैसा देता है, लेट्स से 100 रुपीज देता है. ओके. अब 100 रुपीज दे के बोलता है मैं आपका 20% जो है इक्विटी खरीदूंगा. अब प्रॉब्लम यह है कि उसको खुद नहीं पता कि वैल्यूएशन कितना है. 20% अगर 100 रुपीज में हो जाएगा, मतलब 100% होगा 100 × 5, 500 रुपीज का जो है टोटल वैल्यू हो जाएगा कंपनी का. अब आगे जाके कंपनी ने ऑपरेशंस किए और फर्दर उसको पैसों की जरूरत पड़ गई. सीरीज बी के लिए उसने फर्दर किसी और वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच किया. उसने कोई और मतलब उसने सपोज कहा कि मैं आपका 40% स्टेक खरीदूंगा और 2,000 रुपये दूंगा, पूरा बिजनेस एसेस करने के बाद 40% इक्विटी रख लूंगा. फिर इस हिसाब से तो बिजनेस का वैल्यू जो है 2000 × 10/4, दैट इज 5,000 रुपीज हुई ना. 10 गुना ज्यादा हो गया. सो दैट इज द प्रॉब्लम जो वेंचर फाइनेंसिंग में आता है कि यार ठीक है फाइनेंस वगैरह तो ठीक है, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट के अकॉर्डिंग, उनके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कई बार होता है कि एंटिटी का, बिजनेस का जो है वो प्राइस चेंज करता रहता है. यही बात यहाँ पे पूरा समझाया है. नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कैश ऑन बैलेंस शीट. अब कैश, किसी कोई भी बैलेंस शीट पे अगर आप देखते हैं कि एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ कैश है, राइट, तो उसका क्या मतलब है. उसका मतलब हो सकता है कि what if corporation neither disburse nor invest? What if they just hoard cash? Over the last 10 years, that situation has become more common and exasperated many. Why hold on to cash? There are several possible reasons to hold cash. First and foremost, there have been significant tax penalties to US companies for paying out cash if that cash is held abroad. ठीक है, पहला रीजन है कि अगर सपोज आप, मैं इंडियन इन्वेस्टर हूँ किसी यूएस कंपनी का, सो यूएस कंपनी अगर मुझे लेट्स से डिविडेंड देती है तो उस डिविडेंड का बहुत ज्यादा टैक्स लगता है. सो अवॉइडिंग दैट टैक्स, कंपनीज होल्ड दैट अमाउंट ऑफ कैश. सेकेंड रीजन है कि कैश बैलेंसेस कभी कभी इंश्योरेंस की तरह काम करती है अनसर्टेन टाइम्स में, कि पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए. अगर कोई अनसर्टेन या फिर कोई गलत स्कीम में पैसा लगा लिया तो हम, जब पैसे की जरूरत होगी तब नहीं मिलेगा, है ना. और तीसरा रीजन है कि
मे बी दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ये 3 रीजंस हो सकते हैं कैश होल्ड करके रखने का। फर्स्ट इज टैक्स इम्प्लीकेशन। दूसरा है कि इंश्योरेंस अगेंस्ट अनसर्टेन टाइम्स। थर्ड, वेटिंग फॉर द राइट इन्वेस्टमेंट। 6 मेजर मिस्टेक्स इन कैपिटल एलोकेशन। अब अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 मेजर गलतियां जो कि कैपिटल एलोकेशन में लोग अक्सर कर बैठते हैं। फर्स्ट इज डिलेइंग डिसीजन मेकिंग। नॉट मेकिंग कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस रिजल्ट्स in rising cash levels on corporate and balance sheet. These rising cash levels typically fluctuate। एक सेकंड में मिटा देता हूँ। These raising cash levels typically frustrate shareholders as they question why managers are unable to deploy capital. Moreover, cash on balance sheet can attract attention of activist investors who can use that cash as financing to take the company private. पहला जो गलती है दैट इज डिलेइंग डिसीजन मेकिंग, कि क्या करना है भाई, जल्दी करो जो भी करना है ना। नॉट मेकिंग कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस जो है इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट करके रख देता है, क्योंकि वो सवाल करते हैं कि क्यों मैनेजर्स कैपिटल एलोकेशन नहीं कर पा रहे ढंग से। और दूसरा है कि मोreover कैश ऑन बैलेंस शीट कैन अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स हु कैन यूज दैट कैश एज फाइनेंसिंग टू टेक दैट कंपनी प्राइवेट। कई बार होता है कि बैलेंस शीट में जो एक्सेस कैश है वो एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, जो उस कंपनी को प्राइवेट ले जाने के लिए मजबूर करते हैं। राइट यार, मतलब कोई इन्वेस्टर है, कोई एक्टिविस्ट इन्वेस्टर है जो कि मतलब वोक है। ओके, और वो आके कहता है कि भाई आपके पास इतना पैसा है कि तो आप ऐसा काम करो, आप कंपनी को बाई बैक कर लो, है ना। ट्राइंग टू क्रिएट वैल्यू थ्रू शेयर पेबैक buybacks. Managers sometimes justify buybacks by claiming that they create value for shareholders by buying shares cheaply. In fact, values can't be created through share buybacks. At best, share buybacks transfer value across shareholders depending on the buyback prices for shares. Managers can create only value by investing in positive NPV projects. कई मैनेजर्स बोलते हैं कि शेयर बाईबैक करने से वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मानना गलत है, क्योंकि शेयर बाईबैक करने से वैल्यू क्रिएट नहीं होता है। वो सिर्फ पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने से होता है। शेयर बाईबैक करने से ज्यादा क्या होगा कि इन्वेस्टर्स के बीच में ही वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं, ये हो सकता है। बट नया वैल्यू क्रिएशन नहीं हो सकता है, वो सिर्फ एनपीवी पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से हो सकता है। Preferring acquisitions over organic investment because acquisitions are faster and safer. कई लोग जो कई मैनेजर्स जो होते हैं एक्विजिशंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज एक्विजिशंस आर फास्टर एंड फास्टर। एक्विजिशन जल्दी हो जाता है लेकिन एनपीवी प्रोजेक्ट में काफी टाइम लगता है, इसलिए लोग अक्सर क्या करते हैं कि मर्जर एंड एक्विजिशंस को प्रेफर करते हैं। बट ऐसा करना गलत है, क्योंकि acquisitions appear to be faster and safer but can actually prove to be the opposite because of the information problems between seller and buyer can be risky to companies and the integration issues. जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था कि एक्विजिशन करने के बाद जो सिनर्जी का प्रॉब्लम है कि दो कंपनी एक साथ कितनी जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है, वो अक्सर लोग मिस कैलकुलेट या फिर अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। और दूसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम।
कि भैया बेचने वाले ने पता नहीं क्या इंफॉर्मेशन छुपाया हुआ है ना। इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। Preferring buybacks over dividends because these buybacks are discretionary while dividends are not. तो मैनेजर्स कई बार क्या करते हैं कि डिविडेंड्स पे करने की जगह बाईबैक प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि बाईबैक्स आर डिस्क्रिशनरी वाइल डिविडेंड्स आर नॉट। डिस्क्रिशनरी मतलब सीक्रेट होता है, मतलब हम चुप चुप के बाईबैक कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड देते वक्त हमें ढोल पीटना पड़ेगा। In fact, shareholders can become just as accustomed to a steady stream of buybacks as they do with dividends. Moreover, shareholders value a company's commitment to pay dividend, which can result in gains to shareholders. Finally, special dividends are a simple way to distribute cash that explicitly will not generate expectation for future dividends. तो जैसे कि मैंने बताया कि लोग बाईबैक ज्यादा प्रेफर करते हैं मैनेजर्स एज कम्पेयर टू डिविडेंड्स। बट और उनको लगता है कि बाईबैक जो है वो डिस्क्रिशनरी है, मतलब जल्दी जल्दी से जल्दी हो जाता है और ज्यादा कुछ ढाक ढोल भी नहीं पीटना पड़ेगा। बट डिविडेंड बांटने के लिए अनाउंसमेंट्स वगैरह करने पड़ते हैं, तो काफी प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पे बोला है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है वो बाईबैक के साथ भी उतने ही एक्विंटेड है जितना डिविडेंड्स के साथ। और दूसरा, डिविडेंड बांटना अपने आप में एक कमिटमेंट वाला काम है, मतलब इट शोज द डिटर्मिनेशन ऑफ अ कंपनी, लाइक और द व्हाट यू कॉल द it basically increases the value of the company in the eyes of investors or potential investors. उन इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये कंपनी टाइम से डिविडेंड पे कर रही है, तो अच्छा ही कंपनी होगी, अच्छी कंपनी होगी, राइट। और इसलिए फर्दर फंड रेज करने में प्रॉब्लम नहीं आती। और फाइनली जो है स्पेशल डिविडेंड्स, काफी लोगों को लगता है कि डिविडेंड बांटना बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, कि एक बार दे दिया तो हर बार बांटना ही पड़ता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेशल डिविडेंड तरह नाम का एक डिविडेंड होता है जो कि एक बार सिर्फ बांटना पड़ता है, वो बार बार नहीं बांटना पड़ता। तो दिस इज वाई दिस इज अ रॉन्ग नोशन कि बाईबैक प्रेफर करना चाहिए ऑलवेज एज कम्पेयर टू डिविडेंड्स। Next mistake is preferring to reinvest cash to build a larger business. Size rather than value creation can quickly become an objective of managers, as it's more fun to run a larger business. Building empires can become a major objective for managers that can contradict their mandate to be good stewards of capital. तो मैनेजर्स अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि वो वैल्यू क्रिएशन को इग्नोर कर देते हैं और साइज पे फोकस करते हैं बड़े बिजनेस का। So managers often tend to ignore the objective of value creation in order to focus on size. But this is a wrong notion, because focusing on size is a wrong notion. Okay, it diverts the manager's attention. Of course, it feels good to be the owner of such a huge company or an expanded company, but here, as the line says, that building empires can become a major objective for managers that can contradict their mandate to be good stewards of capital. Okay, so this line is self-explanatory in itself, because it says that uh, oftentimes managers' objectives become towards building empires, but they often forget the important aspect of business, that is being a good stewards of capital. Now, being good stewards of capital means they have to focus on their prime objective, that is value creation. And the next and the last mistake is that excessive distribution of cash to satisfy short-term shareholders. Okay, so excessive distribution of cash to satisfy short-term shareholders, oftentimes
what a manager does is they ignore good NPV projects because it is time consuming and the returns that they will generate will be delayed. And in order by doing that, they focus on solving short term needs of the shareholders. Like shareholders rant for immediate returns, and in order to satisfy their needs, the managers often tend to ignore long-term projects with good NPVs and instead use the cash to satisfy the short-term needs of the shareholders. But again, this is problematic because the objective of business is to, you know, uh, the main objective of invest of a business is to create value, and for that, investing in good NPV projects is of utmost important. So with this, we end this chapter, and in the next video on this series, I will explain uh, these ideas in actions and case studies associated with this chapter. At the same time, I will create a summarized note and study from and revise this entire chapter again.